رائٹ جی. آج کے سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا لاسٹ جو بھی ہمارا سیشن ہوا تھا اس میں ہم نے ارن ویلیو کی بات کی تھی، اور اس دفعہ ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا جو آپ کی کوئریز اسکیجولنگ کے بارے میں ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ اس سبجیکٹ کو بھی کلوز کیا جائے. اسکیجولنگ کے حوالے سے جی آپ بولیے. جی سر، میں نے وینٹ تھرو اٹ، اور یہ دو چار چیزیں تھیں جو میں نے تھوڑی سی آپ کی ایلیبریشن چاہیے تھی اس پہ، وہ میں نے آپ کو وہ میسج کیا تھا، آپ کو شاید میں دیکھا ہوگا. جی جی. تو میں خیر وہ میسج تو نہیں میں نے دیکھا، لیکن آپ نے لیڈ اینڈ لیگ کی بات کی، آپ نے اپنا جو گین چارٹ وغیرہ بنتا ہے اس کی ساری ترتیب آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی سر بالکل، یہ لیڈ لیگ کا تھوڑا سا کلیئر ہو جائے، یہ جو پریسیڈنس ڈائیگرام ہے کیونکہ اس کے بارے میں اگر آپ الیبوریٹ کریں گے تو. بالکل بالکل. اچھا دیکھیں، یہ جو پریسیڈنس ڈائیگرام ہے یا جو بھی کوئی سیکوینسنگ ڈائیگرام ہوتا ہے، اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے اپنا پروجیکٹ ڈیوائز کیا اور ہم نے اپنا سکوپ اسٹیبلش کیا، تو اس کے بعد ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز ڈیفائن کی کہ ہم کیا کیا کام کریں گے. رائٹ؟ تو all the tasks have been defined, our activities have been defined. Now, what activity is to be done when is the main question. اب when بھی چلیں، بات کی بات ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹس ابھی ہمیں نہیں پتا، لیکن ایٹ لیسٹ after having identified all the activities, we must establish a sequence in which those activities should happen. کون سا کام پہلے ہونا ہے، کون سا اس کے بعد ہونا ہے، کیا ختم ہو جائے گا تو کیا شروع ہو سکتا ہے، مطلب یا کیا چیز شروع کرنے کے لیے کیا کیا کچھ ختم ہو چکا ہونا چاہیے. سو یہ چیز اسٹیبلش ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنے پروجیکٹ کا گین چارٹ نہیں بنا سکتے. اچھا جی 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 سر بالکل ٹھیک ہے، فالوئنگ یو. اوکے. تو ایکٹیویٹیز جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی تھیں، عام طور پہ خیال لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹی آئیڈینٹیفائی کی تو سیکوینس اس کے ساتھ ہی ہم بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کون کون سے کام کرنے ہیں، بے شک آپ اس میں سوچ کے بہاؤ میں آپ کہیں یار یہ کریں گے، یہ ترتیب میں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ترتیب دراصل آپ کا سیکوینس ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو. کام ایکچولی کرنے کا جو سیکوینس ہے وہ ابھی بعد میں ڈیوائس ہوگا. لیکن اس وقت جب ہم ایکٹیویٹیز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش کہ کوئی کام ایسا رہ نہ جائے جو اس پروجیکٹ میں کرنا ہے. مطلب وی آر ٹرائنگ ٹو انکیپسولیٹ آل دا ورک which has to be done, whether it is related with any other work or not. But what all has to be done to accomplish this project, وہ سب باتیں ہم نوٹ کر لینا چاہتے ہیں. تو ایکٹیویٹیز بذات خود صرف نام ہیں مختلف کاموں کے، نہ تو ایکٹیویٹی اس وقت ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ وہ کتنی لمبی ہوگی، نہ یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ اس کی ترتیب کیا ہوگی اور وہ کب شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی، ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. سو پہلا کام جو ہم نے کیا وہ ایکٹیویٹیز آئیڈینٹیفائی کی، ان کے نام پتہ چل گئے. اور جب نام بھی آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو جنرلی ایک ہدایت یہ دوں گا کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو تھنک ان سیکوینس، رادر تھوڑا سا برین اسٹارم کریں، آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کریں کہ کہیں اور مطلب آؤٹ آف دی باکس جا کے، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا نارمل سوچ کو چھوڑ کے آپ سوچنے کی کوشش کریں اچھا اور کیا کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی چیز رہ نہ جائے کہیں. خیر، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سفیشینٹلی ساری ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اپیرنٹلی، then you can do two things. Number one, you can try to establish the duration of each of these activities. کیونکہ ہر ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن اس کی ذاتی ہوتی ہے. کسی ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن کا تعلق کسی اور ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن سے نہیں ہو سکتا. اس سے آپ ڈفر تو نہیں کریں گے؟ اگر دیوار جو ہے وہ 8 دنوں میں بننی ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ فاؤنڈیشن کتنے دنوں میں بننی ہے. دیوار 8 دنوں میں بننی ہے، فاؤنڈیشن کا اپنا ٹائم ہے.
छत का अपना टाइम है। सो जो भी कोई काम आप कर रहे हैं, आप मतलब सॉफ्टवेयर एनालिसिस कर रहे हैं, फिर बाद में आपने कोडिंग करनी है, कोडिंग का अपना टाइम है, एनालिसिस का अपना टाइम है, प्रोग्रामिंग का अपना टाइम है, डिबगिंग का अपना टाइम है। हर एक काम जो है उसका अपना अपना टाइम है। वो अलग बात है कि इनमें से दो काम आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं। खैर, तो कहने का मतलब है कि जब एक्टिविटीज की ड्यूरेशन फाइंड की जा रही हो, उस वक्त मेरे लिए ये जानना कतन जरूरी नहीं है कि ये एक्टिविटी पहले होगी या बाद में होगी। मैंने गलत बात तो नहीं की, कोई आपको मतलब इसमें कोई डिफर तो नहीं कर रहे? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। अभी तक वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप कोई नहीं एस्टेब्लिश हुआ। रिलेशनशिप हो भी जाएगा, इवन देन हर एक्टिविटी का अपना अपना ड्यूरेशन है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि पहले ये काम होना है और बाद में ये काम होना है तो इसकी वजह से अब इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन मुतासिर होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। अगर मुतासिर होगी तो पहली एक्टिविटी का डिले हो जाए उससे मुतासिर होगी, लेकिन जितना वक्त इस एक्टिविटी ने खुद पे लगाना है वो तो उतना ही रहेगा। हाँ, उसकी स्टार्ट डेट आगे पुश हो जाएगी तो फिनिश डेट भी आगे पुश हो जाएगी। अगर 8 दिन की दीवार बननी है तो वो अगर 10 तारीख को शुरू होनी थी, वो 10 तारीख को नहीं शुरू हुई, 12 को शुरू हुई है, तो उसकी कंप्लीशन डेट 2 दिन आगे चली जाएगी। दैट्स ऑल। द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी विल रिमेन द सेम। So I am talking about duration is independent of any sequencing. दूसरी बात आ जाती है, आमतौर पे ये लोग नहीं समझते। लोग समझते हैं कि नहीं, सीक्वेंस और ये जो ड्यूरेशन है इसका आपस में कोई ताल्लुक है, क्योंकि वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट दीज एक्टिविटीज इन इंडिविजुअलिटी, वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द होल प्रोजेक्ट। नहीं जी, प्रोजेक्ट तो अब ये 40 दिन का है तो ये तो 42 दिन में हो जाएगा, ये तो ड्यूरेशन में फर्क। भाई आपसे किसने पूछा है कि आप प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन तक जंप मार के चले जाएं? इस वक्त एक्टिविटी की ड्यूरेशन तक की बात करनी है और एक्टिविटी की ड्यूरेशन इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली हर एक्टिविटी का किसी ना किसी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक भी हो सकता है, सीक्वेंस भी हो सकता है, तरतीब भी हो सकती है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरेशन का एस्टिमेट लगाना और सीक्वेंसिंग करना बैक वक्त पॉसिबल है। मतलब ये कि दो अलग अलग आदमी हैं, उनके पास एक्टिविटी लिस्टें पड़ी हुई हैं, एक बैठा ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहा है और दूसरा बैठा हुआ सीक्वेंस बना रहा है कि पहले कौन सा काम होगा बाद में कौन सा होगा। दोनों ये बिल्कुल मुमकिन है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ड्यूरेशन एस्टिमेट भी अलग से की जा सकती है और सीक्वेंसिंग भी अलग से की जा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अच्छा अभी ड्यूरेशन को निकाल दें, मैं बल्कि ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ड्यूरेशन ना भी पता हो तो भी सीक्वेंसिंग की जा सकती है। ये ज्यादा मजे की बात है। फॉरगेट अबाउट ड्यूरेशन। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप कोडिंग जो है वो प्रोग्राम करने से पहले कर सकते हैं? कर सकते हैं। मतलब कोडिंग तो सॉरी क्या कह रहा हूं, उसका जो आप कोड लिखते हैं, कोड लिखने से लिख के बगैर आप प्रोग्राम तो नहीं लिख सकते ना। जी सर। इसका मतलब है कि कोड का लिखा हुआ होना, लिखा जा चुका होना जरूरी है ताकि मैं कोडिंग शुरू कर सकूं। ये एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, एक काम दूसरे काम के ऊपर डिपेंडेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोडिंग करने में कितना टाइम लगा और उसको क्या कहते हैं पंच इन करने में कितना टाइम लग रहा है आपको। वो अलग अलग दो एक्टिविटीज का टाइम है और वो उन दोनों एक्टिविटीज का आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, अब अगली बात पे आ जाता हूं। एक्टिविटीज के दरमियान डिपेंडेंसी का रिलेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसी दो एक्टिविटीज हो सकती हैं जिनका कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन ऐसी दो एक्टिविटीज भी होंगी और लाजमी होंगी कि जिनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन होगा। और जो रिलेशन होगा
वो होगा डिपेंडेंसी का। जब तक ये नहीं होता ये नहीं हो सकता, जब तक ये काम खत्म नहीं होता ये काम शुरू नहीं हो सकता। ये है डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जो जब तक पहला काम खत्म नहीं होता दूसरा काम शुरू नहीं हो सकता। हम ये समझते हैं कि जो पहले वाला काम है वो प्रीडिसेसर है और जो बाद वाला काम है वो सक्सेसर है। आमतौर पे तो यही डेफिनेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया में आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है, जो कि इट इज नॉट एंटायरली करेक्ट। असल में पहले होने वाली एक्टिविटी जरूरी नहीं है कि प्रीडिसेसर हो, लेकिन चूंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस स्टैंड्स ट्रू, इसलिए हम ये बिलीव कर लेते हैं कि पहले वाली एक्टिविटी जो है वही प्रीडिसेसर है और जो बाद वाली एक्टिविटी है वही सक्सेसर है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे सिनेरियोज दिखाऊंगा जिसके अंदर हम इस रूल को ब्रेक करें। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जब मैं सीक्वेंसिंग की बात करता हूं, रिलेशनशिप अमॉन्ग्स्ट द एक्टिविटीज की बात करता हूं, अगर दो एक्टिविटीज का आपस में कोई ताल्लुक है तो वो डिपेंडेंसी का ताल्लुक है, और दो एक्टिविटीज कभी भी आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं हो सकती। मेरी बात समझ आई आपको? थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि आपने कहा कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है लेकिन इंटरडिपेंडेंसी नहीं हो सकती। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि ए बी पे डिपेंड कर रही है, बी ए पे डिपेंड कर रही है, इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट। ये गलत है। एक एक्टिविटी दूसरे पे डिपेंड कर सकती है, अगर ए बी पे डिपेंड कर रही है तो बी ए पे डिपेंड नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है ना जी? तो इसका मतलब है दे कैन नॉट बी इंटरडिपेंडेंट, बट वन हैज टू डिपेंड अपॉन अदर इफ देयर इज अ रिलेशनशिप। मैंने साथ ये भी पहले कह दिया था कि ऐसा मुमकिन है कि दो एक्टिविटीज में कोई रिश्ता ही ना हो। अगर रिश्ता होगा तो डिपेंडेंसी का होगा, और उन दोनों में से एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पर डिपेंड कर रही होगी। जो जिस पर डिपेंड किया जा रहा होता है उसको प्रीडिसेसर कहते हैं, और जो डिपेंडेंट एक्टिविटी है उसको हम सक्सेसर कहते हैं। दिस इज द न्यू एंड बेटर डेफिनेशन देन पहले वाली बाद वाली एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप वो पहले बाद वाली बात भी यहां ट्रू है एक तरह से। आप कहते हैं जब तक दीवारें खड़ी नहीं हो जाती छत का काम शुरू नहीं किया जा सकता। मतलब द वर्क ऑन वॉल कंस्ट्रक्शन मस्ट हैव फिनिश्ड। वी आर मतलब छत पे काम शुरू करना डिपेंडेंट है दीवारों के पाया तकमील तक पहुंच जाने के। जब तक दीवारें मुकम्मल नहीं हो जाती आप छत पर काम शुरू ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है छत का काम दीवारों के काम पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी? लेकिन यहां एक मजे की बात यह आ जाती है कि वो डिपेंडेंसी किस चीज मतलब किस पॉइंट के ऊपर है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट द प्रीडिसेसर एक्टिविटी जिसके ऊपर डिपेंड किया जा रहा है उसके किस लम्हे के ऊपर आपकी एक्टिविटी डिपेंडेंट है। हर एक्टिविटी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिशिंग पॉइंट होता है। हम जो रिलेशन निकालेंगे या स्टार्ट से निकालेंगे या फिनिश से निकालेंगे, आम तौर पे जो रिलेशन निकलता है वो कहते हैं जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाता अगला काम शुरू नहीं होगा। मतलब ये है कि प्रीडिसेसर के फिनिश पॉइंट के बाद उससे मेरा जो सक्सेसर है उसका स्टार्ट पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो आम तौर पे जो सबसे मशहूर या सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रिलेशनशिप है वो है फिनिश टू स्टार्ट, जिसमें पहले वाला जो लफ्ज एफ है दैट स्टैंड्स फॉर द प्रीडिसेसर, और जो दूसरे वाला हर्फ है एस है दैट स्टैंड्स फॉर द सक्सेसर। सो प्रीडिसेसर का खत्म हो चुका होना और सक्सेसर का शुरू होना
आपस में मिलाया जा सकता है। ये भी बात समझ आ गई? जी सर, ठीक हो गया। अब एक और बात समझ लीजिए कि जो प्रीडिसेसर खत्म हो रही है, ये एक लाजमी शर्त लगा रही है, दिस इज अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। मतलब बी एक्टिविटी जो है, जो सक्सेसर है, उसकी मजाल नहीं है कि वो शुरू हो सके जब तक कि ए खत्म नहीं हो जाती। सो ए जो है वो कंडीशन दे रही है, और वो जिसे कहते हैं ना कि एक मैंडेटरी कंडीशन है कि जब तक ए एक्टिविटी पाया तकमील तक नहीं पहुंच जाती, इख्तिताम तक नहीं पहुंच जाती, बी को शुरू करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आपको मना है, मैंडेटरीली मना है, आप नहीं शुरू कर सकते बी को। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर वो मैंडेटरी कंडीशन पूरी हो चुकी है, मतलब दीवार बन चुकी है, अब मैं छत कब शुरू करूं? जो बी एक्टिविटी है, जो सक्सेसर एक्टिविटी है, वो मैं कब शुरू कर सकता हूं? जी जनाब। जब दीवार पूरी हो गई है उसके बाद आप शुरू करेंगे छत का? क्या मैं उसके फौरन बाद शुरू कर दूं? जी बताइए। जी सर, उसके जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप छत का काम शुरू कर सकते हैं। कर सकते हैं आपने कहा, मतलब यू आर नॉट श्योर कि मैं उसके फौरन बाद शुरू कर दूं या ना करूं। मतलब ये है कि अगर दीवार कंप्लीट हो गई है, मैं कहता हूं अच्छा यार चलो मैं जरा चाय पी के आता हूं, 2 घंटे बाद आके बनाऊंगा, आपको कोई इतराज तो नहीं है? नहीं सर, ये कोई चीज डिफाइन तो करेगी वैसे। देखें ना मेरी बात, आप देखें, मैंने ये कहा कि जब तक दीवार खत्म नहीं होती छत का काम शुरू हो ही नहीं सकता, ये तो कंडीशन है। अब दीवार खत्म हो चुकी है, आप चाहें तो जल्द अज जल्द फौरी तौर पे भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 घंटा, 2 घंटे, 2 दिन, 10 दिन बाद शुरू करना चाहें तो आपको कौन रोक सकता है? जो जो मैंडेटरी कंडीशन थी वो तो पूरी हो गई। अब आपकी स्वीट विल है कि आप कब शुरू करना चाहते हैं। अगर आपके पास गुंजाइश है लेट करने की तो आप भले जितना मर्जी लेट करें, इसके ऊपर आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपकी ये मजाल नहीं थी कि प्रीडिसेसर के खत्म होने से पहले शुरू कर लेते। क्या ठीक है ना ये बात? इसका मतलब है कि प्रीडिसेसर का खत्म होना लाजमी शर्त था और सक्सेसर का शुरू होना आपकी स्वीट विल एंड विश है। यू कैन डू इट, यू कैन स्टार्ट इट, राइट? तो इसका ये भी मतलब हो गया कि प्रीडिसेसर के खत्म होने के बाद किसी भी वक्त सक्सेसर एक्टिविटी को शुरू किया जा सकता है। मैं ब्रैकेट में कहूंगा प्रोवाइडेड देयर आर नो अदर लिमिटेशंस। अगर आपको, लाजिमी बात है आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको उधर से प्रेशर होगा ना, काम जल्दी खत्म करो। दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। बट इफ यू हैव फ्लोट या गुंजाइश है आपके पास तो आप लेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी? तो मतलब आपको प्रीडिसेसर ये नहीं आप पे दबाव डाल रहा कि तुम फौरन शुरू करो, वो दबाव कहीं और से आ रहा है। लेकिन प्रीडिसेसर ये दबाव डाल रहा है कि मेरे खत्म होने से पहले तुम्हारी मजाल नहीं है कि शुरू करो। ये जो रिलेशनशिप है मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की, ये फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। और इसमें 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए जैसे मैंने आपको बताया। पहला फिनिश स्टैंड्स फॉर द प्रीडिसेसर, और दूसरा जो स्टार्ट लगा हुआ है दैट स्टैंड्स फॉर द सक्सेसर। अच्छा, ये है आमतौर पे लोग समझते हैं कि बस यही काम हो गया जी, यही रिलेशनशिप है। और अगर सिर्फ इसी रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाए तो प्रीडिसेसर हमेशा पहले ही होता है और सक्सेसर हमेशा बाद में ही होता है।
लेकिन मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि दिस इज नॉट द ओनली रिलेशनशिप अवेलेबल. देयर आर some other kinds of relationships which are also available alongside finish to start. मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि आप पे पाबंदी प्रीडिसेसर ने ये लगाई है कि जब तक प्रीडिसेसर पे काम शुरू ना हो जाए आप काम शुरू नहीं कर सकते. बात समझ आई? प्रीडिसेसर पे काम का शुरू होना लाजमी है. जब वो काम शुरू हो जाए उसके बाद किसी भी वक्त अपनी कंफर्ट देख के आप बी एक्टिविटी को शुरू कर सकते हैं. मतलब अब रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट नहीं रहा, अब क्या बन गया? वेरी गुड. सो अब हमारी डिपेंडेंसी प्रीडिसेसर के शुरू होने के ऊपर चली गई है. मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं कि इसका क्या फायदा या नुकसान है. इसी तरह एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो सकता है कि मैं ये कहूं कि प्रीडिसेसर का खत्म हो चुका होना जरूरी है ताकि आप सक्सेसर को खत्म कर सकें. अ लिटिल कंफ्यूजिंग. सवाल उठता है कि अच्छा चलो प्रीडिसेसर के खत्म होने के बाद मैं सक्सेसर को खत्म तो कर लूंगा, लेकिन सक्सेसर शुरू कब करनी है ये नहीं बताया गया. इसका मतलब है कि सक्सेसर का शुरू होना इस रिलेशनशिप का पार्ट नहीं है. हो सकता है किसी और एक्टिविटी से उसका शुरू होना मिला हो, या अगर ना भी मिला हो तो ये तो हमें पता है कि सक्सेसर प्रीडिसेसर से पहले खत्म नहीं हो सकती. बात समझ आई? जी जनाब. सर ठीक है सर. कंफ्यूजन हो तो बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि वो लफ्जों का ये जो भी आपने तीसरा सिनेरियो बताया है सर, ये क्या हो जाएगा? इसको फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप जी, इसको फिनिश टू फिनिश कहते हैं कि जब तक प्रीडिसेसर खत्म ना हो जाए आप सक्सेसर को खत्म नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि प्रिज्यूमेबली सक्सेसर भी शायद पहले का ही शुरू हुआ है, लेकिन जिस चीज को चेक किया जा रहा है वो ये है कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता ए से पहले. प्रीडिसेसर से पहले सक्सेसर को खत्म नहीं किया जा सकता. अगर सक्सेसर खत्म हो भी रहा है तो हम उसका काम लटकाते रहेंगे जब तक प्रीडिसेसर खत्म ना हो जाए. हम सक्सेसर को कंप्लीशन उसकी डिक्लेयर नहीं कर सकते. और एक चौथा रिलेशनशिप होता है, उसको कहते हैं जी स्टार्ट टू फिनिश. स्टार्ट टू फिनिश का मतलब होता है कि अब ये सबसे मुश्किल रिलेशनशिप है समझने के हवाले से. वो कहता है कि प्रीडिसेसर का शुरू हो चुका होना जरूरी है ताकि सक्सेसर को खत्म किया जा सके. क्या समझे? मतलब उसका प्रीडिसेसर का खत्म होने का कोई इफेक्ट नहीं है, शुरू हो गया तो आप अगर प्रीडिसेसर शुरू हो गया तो आप सक्सेसर को खत्म कर सकते हैं. मतलब इसका ये हुआ कि सक्सेसर शायद प्रीडिसेसर से भी बहुत पहले का शुरू हुआ है. तो यही बात थी जिस वजह से मैंने कहा था कि ये जरूरी नहीं होता कि प्रीडिसेसर पहले ही हो और सक्सेसर बाद में ही हो. ये जो फिनिश टू स्टार्ट वाला रिलेशनशिप है इसमें प्रीडिसेसर जो है वो बाद में है और सक्सेसर पहले है. अच्छा, अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा तो आपको ये बातें क्लियर होंगी. जनरली आपको ये मैंने बात समझा दी. हाँ, एक फिक्रा अगर आप लिख लें, नोट कर लें, that is a standard formula for all of these four relationships. The predecessor activity must को कैपिटल में लिखिएगा. The predecessor activity must, इसके आगे एक ब्लैंक स्पेस डाल दीजिए.
आगे कॉमा डाल के लिखिए एज इफ द सक्सेसर कैन को कैपिटल में लिखिएगा और इसके आगे फिर एक स्पेस डाल दें। ये बन गया अ प्रीडिसेसर एक्टिविटी मस्ट डैश एज इफ द सक्सेसर कैन डैश। अब ये जो दो डैशेज हैं इसमें आप ये सारे रिलेशनशिप डाल के देखें, पहले में एफ और दूसरे में एस डाल के देखें, पहले में एफ दूसरे में एफ डाल के देखें, पहले में एस दूसरे में एस डाल के देखें, पहले में एस दूसरे में एफ डाल के देखें। ये सारे रिलेशनशिप जो हैं इनकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। फिनिश टू स्टार्ट की सूरत में द प्रीडिसेसर एक्टिविटी मस्ट हैव फिनिश्ड एज इफ द सक्सेसर कैन स्टार्ट। फिनिश टू फिनिश की सूरत में a predecessor activity must have finished as if the successor can finish. Start to start की सूरत में a predecessor activity must have started as if the successor activity can be started. या start to finish a predecessor activity must have started as if the successor activity can finish. लेकिन मजबूर कौन है, डिपेंडेंट कौन है? सक्सेसर। ठीक है जी। कंडीशन कौन लगा रहा है? प्रीडिसेसर। मैंडेटरी कंडीशन हमेशा प्रीडिसेसर बताता है। ओके, अब आ जाते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। अक्सर जब लोग ये चीजें पढ़ाते हैं तो वो अलग अलग एग्जांपल्स देते हैं। मैं इस बात को बिलीव नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि किसी भी रिलेशनशिप को चेंज करके दूसरी रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, लेकिन जो सबसे लॉजिकल रिलेशनशिप बनती है, जो सबसे नेचुरल रिलेशनशिप नजर आती है और जिसको हमारा दिमाग रेडिली एक्सेप्ट करता है, वो फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। मतलब मोस्ट रियल लाइफ या नियरेस्ट टू द लाइफ जो हमारा दिमाग भी एक्सेप्ट करता है, लॉजिक में भी आती है, समझ में भी आती है, वो फिनिश टू स्टार्ट है। जब मैं कहता हूं फिनिश टू फिनिश, तो जो ही ये बात दिमाग में आती है कि यार प्रीडिसेसर एक्टिविटी तो खत्म हो रही है और जब वो खत्म हो रही है तो सक्सेसर उसके बाद खत्म हो सकती है, तो आपके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है, तो अच्छा फिर ये स्टार्ट कब हुई थी, वो किस पर डिपेंडेंट है? डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. That is not your problem. The relationship between these two activities which you have been told is finish to finish, and therefore you should only look at the finish to finish point. अच्छा, फर्ज करें कि ओरिजिनली ए और बी के दरमियान फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप था। ए जो थी वो 8 दिन की थी, बी जो थी वो 5 दिन की थी। तो अगर फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप होता तो इन दोनों एक्टिविटीज को खत्म होने में कितना टाइम लगता? वेरी गुड। मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये जनाब आपकी ए एक्टिविटी है 8 दिन की, और इसके फिनिश होने के बाद मेरी बी एक्टिविटी है 5 दिन की। तो टोटल जो टाइम यहां से लेके यहां तक लगा वो है 13 दिन। अच्छा जी, और ये रिलेशनशिप इसका है, इसका फिनिश और इसका स्टार्ट। ये इसका स्टार्ट है, ये इसका फिनिश है। तो इंटरेस्टिंग ये भी बात हो गई कि बी एक्टिविटी का जो फिनिश है हो सकता है किसी और का स्टार्ट हो, सी एक्टिविटी का स्टार्ट हो। तो मतलब ये रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी। और ऐसा भी मुमकिन है कि ए के खत्म होने पर दो एक्टिविटीज शुरू हो रही हों, ए और सी। मतलब ये ए और सी दोनों जो एक्टिविटीज हैं, प्रीडिसेसर हैं, ये दोनों प्रीडिसेसर हों ए ही की। ऐसा भी मुमकिन है। बट एनीवेज, फॉर द टाइम बीइंग हम सी की बात नहीं कर रहे, हम ए और बी की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये कहता हूं
کہ اگر آپ کو آپ کا باس یہ کہتا ہے کہ بھائی بڑی مجبوری ہو گئی ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ٹائم ریڈیوس کرو، تو آپ کیسے ریڈیوس کریں گے؟ اگر اے اور بی کے اندر ٹائم کو کمپریس کرنا ہوگا تو آپ کیسے کریں گے؟ سر یہ تو اپنی جگہ قائم رہے گا، کیونکہ اس ٹائم تک تو ہم اسٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک کس کو جی؟ اے کو، بی کو سٹارٹ نہیں کر سکتے، اے کو نہیں؟ بی کو اسٹارٹ وہ تو کنڈیشن ہے نا، لیکن ابھی مجبوری ہے، باس کہہ رہا ہے کہ ٹائم نہیں ہے 13 دن آپ کے پاس، جلدی کرو۔ اب آپ اس کو کیسے جلدی کریں گے؟ ہم بی کو جلدی اسٹارٹ کر لیں، وہ نہیں کر سکتے۔ نہیں نہیں، کریں کریں، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بی کو جلدی سٹارٹ کر لیں اگر ایسا ممکن ہو سکے تو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی پہلے سٹارٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی لاجیکل ریزن ہوگی نا، کوئی نہ کوئی، ایگزیکٹلی، کوئی نہ کوئی لاجیکل ریزن ہوگی کہ بھائی ان دیواروں کے اوپر چھت پڑنی ہے تو دیواریں تو ایگزسٹ نہیں کری، چھت کیسے ڈال دیں؟ اب آپ مجھے بتائیں، ایز اے انجینئر اور ایز اے پرابلم سالور آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اچھا آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچیں گے، آپ کو عجیب عجیب قسم کے سولوشن نظر آئیں گے۔ لیکن اگر آپ اپ فرنٹ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ دیواریں ابھی ہوں نہ اور چھت پہلے پڑ جائے؟ لیکن اگر مجبوری ہوئی تو آپ کا دماغ خود ہی نوے نوے طریقے ڈھونڈ کے لائے گا، اور آپ کہیں گے اچھا یار ایسا کرتے ہیں کہ ہم چھت ڈالنے کا کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں 4 کنارے ہی چاہیے نا، ہم ان 4 کناروں کے اوپر کوئی پرماننٹ ٹیمپریری سٹرکچر کھڑا کر کے اس پہ چھت ڈالنا شروع کریں گے، اور جب دیوار کمپلیٹ ہو جائے گی ہم اس پہ لور کر دیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی سولوشن ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انوویٹو آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو مطلب کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم کسی طریقے کے ساتھ اگلا کام جو سکسیسر ہے اس کو کچھ پہلے شروع کر لیں، اور کنڈیشن چینج کر کے ہم کہیں کہ اگر یہ ممکن ہے کہ بی کو اے سے پہلے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، اے کے فنش ہونے سے پہلے، تو ہم یہ ریلیشن شپ بدل کے فنش ٹو فنش کر دیں۔ اگر ایسا ہو گیا اور ہم نے اس ریلیشن شپ کو فنش ٹو فنش کر دیا تو کم از کم اس ایکٹیویٹیز دونوں کو ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جناب یہ ہے اے 8 دن کی، اور اگر میں اس کے فنش پہ اس کو فنش کروں، ارلیسٹ یہی کر سکتا ہوں نا، تو ٹوٹل 8 دنوں میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسا لازمی ہو جائے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ممکن ہو کہ کسی طرح سے ہم یہ ریلیشن شپ بدل کے اس کو فنش ٹو فنش کر دیں تو یہ 13 دن کا کام 8 دن میں ہو جائے گا۔ 10 we are saving 5 days which is میجیکل ممکن نہیں ہے اتنی تیزی سے کام کرنا۔ لیکن اگر میں کوئی ایسا لاجک چینج کروں، کوئی ایسا نقطہ اٹھاؤں، کوئی ایسا یونیک کریٹو سولوشن لے کے آؤں، تو یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکے، اور اگر اس سے بھی زیادہ آپ کریٹو ہو جائیں تو آپ اس کو سٹارٹ ٹو سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ ٹو سٹارٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اے ہے تو اے کے بعد بی شروع ہو، مطلب اے کے شروع ہونے کے بعد بی شروع ہو، مطلب ارلیسٹ اے کے ساتھ ہی شروع ہو سکتی ہے، تو اس کی ڈیٹ اور پیچھے آ جائے گی۔ لیکن اوور آل ٹائم میں ہمیں زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا، 8 ہی دن رہے، صرف یہ ہوا کہ یہ جو بی ایکٹیویٹی تھی یہ فنش ٹو فنش کے بجائے سٹارٹ ٹو سٹارٹ ہو گئی۔ لیکن اگر میں اس کو سٹارٹ ٹو فنش کر دوں، اے ایکٹیویٹی 8 دن کی، اس کے سٹارٹ پہ اس کو فنش کروں، دیٹ مینس کہ بی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اے سے بھی پہلے شروع ہو سکتی ہے، اور آپ صرف اے کے سٹارٹ ہونے کا انتظار کریں گے، تو اگر وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا تو میں اس کو ختم کر دوں گا۔ اچھا اب یہ کہنے کو تو باتیں سب صحیح ہو گئی، اصل میں آپ کی آئی ٹی کی ایگزامپل اس سے نہیں لے رہا کیونکہ پرومیننٹلی ویزیبل کنسٹرکشن کی ایگزامپل ہوتی ہے کہ جو نظر آتا ہے کہ اچھا دیوار ہے، چھت ہے، فاؤنڈیشن ہے،
इसलिए मैं बार बार उस तरफ चला जाता हूँ। अदरवाइज आईटी में भी इसकी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, लेकिन मैं वही फाउंडेशन अपना क्या कहते हैं, दीवार और छत वाली बात करूंगा। वैसे दीवार बनने में 8 दिन लग रहे हैं और उसके बाद ही फाउंडेशन छत छत डाली जा सकती है जिसमें 5 दिन लगेंगे। अगर जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आपके ऊपर मजबूरी हो और आपको छत पहले कंप्लीट करनी है, तो आप कोई ऐसी जुगाड़ निकालें जिससे बी एक्टिविटी का स्टार्ट जो है वो अनलिंक हो जाए ए के साथ, और हम फिर उसको इसके फिनिश के साथ लिंक कर दें। कुछ सोचें तरीका क्या हो सकता है। जी सर, अपने फील्ड से कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। जी आप हैं? हेलो? जी आप हैं? फैसल?